You need not build a body, no? Build इतना muscles की जरूरत नहीं. Never ever any medical book says that you have to go to gym. अभी मेडिकल बुक क्या सब कुछ बोलेगा क्या? मत करो. मत Don't करो, do that. डोंट डू इट. This is the reason. You raise a very good point. क्यों आते बैक पेन? बैक पेन आता है बिकॉज ऑफ अननेसेसरी. एक ही रहता है कि मुझे जिम जाना है, हाँ मतलब साइकिलिंग करना है. भाई वो सब क्यों जाना जिम तुमको? बोला नहीं बॉडी बनानी है. बॉडी क्यों बनाना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई. हाँ. बॉडी क्यों बनाना? अभी शादी हो गई. देख, बॉडी क्यों बनाना, शादी हो गई. सो गाइज, द ओनली रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज दिस क्लिप विच इज गोइंग वायरल ऑन इंस्टाग्राम. This clip is from a podcast of a well-renowned doctor from India, and I'll show you the clip, so don't worry. The only thing that is wrong with this clip is the information that is given by a respected sir about health and fitness, going to the gym and lifting weight as such. What is sad is like people in India are already not aware about health and fitness and lifting weight and strengthening as such. And because of doctors like him, people get scared even more from working out and joining a gym as such. And there is like 15,000 views on this particular video, and already people in the comment section are praising him and whatever he has said. So let's see what sir has said in the video. ये we cannot tell that this is the reason for you. अगर आपको बैक पेन आया और बैक पेन के पहले आपको कुछ इंजरी हुआ, then that is that's a kind of reason for it. और अदरवाइज कोई भी रीजन नहीं है तो बहुत सारे रीजन है इसका. आपका ट्रैवलिंग हो गया, वन ऑफ द रीजंस. आपका बॉडी हैबिटस, लाइक आपका कितना ओबीज है आपका एक्टिविटीज क्या है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया is the reason for all the joint pains. एक मिनट. Westernization of India is the reason for all the joint pains. Westernization क्या बता? अब ये सुन के आपको ताज्जुब लगेगा, ये डॉक्टर क्या ऐसा बोल रहा है. साइकिलिंग, वॉकिंग, ट्रेकिंग, मैराथन्स, स्विमिंग, जिम, 7 बोला ना. According to respected sir, all these activities, okay, all the activities are westernized. People in India were not aware about all this activity, and because of these activities, people are getting injured, people are getting pain, people are getting joint pain. Nice. Very ये good. सब हम सोचते हैं, यंगस्टर्स सोचते हैं कि these are the things what we have to do. 100% wrong. ये सब क्या है? These are not exercises. These are sports. Cycling is a sport. Swimming is a sport. Trekking is a sport. Marathon is a sport. These are not exercises, guys. These are sports, which is completely wrong. These are movements and these are activities. Even before coming into a sport, these were all the movements and activities. Like cycling was made to commute from one place to another. People used to swim, people used to cross rivers, people used to run behind the hunt, behind the kill. Okay, so we have been doing this, and after that, it has made into a sport. So I don't know why he's saying this. Gym is not for routine. Abhi you are a journalist or you're an anchor. You run a digital company. You need not build a body, no? Build इतना muscles की जरूरत नहीं है. इतना मसल्स की जरूरत नहीं है. मसल्स बिल्ड करना हलवा नहीं है भाई. You need lot of things that should be going in a right direction to build muscle. And muscles are important, by the way, okay? Before getting into the video forward, okay, why muscles are important, okay? After 30, you start losing muscle. And after 50, the moment you reach 50, after 50, you lose 1.5% of your muscle mass every passing year. So there's a thing called sarcopenia. And more than muscle, you lose bone density. If you don't work out, if you don't lift weight, if you don't have the habit of going to the gym, okay, if you don't take care of your health and all stuff, okay. So according to him, muscles की जरूरत नहीं है. तुम्हारे को, तुम कॉर्पोरेट में हो, तुम ऑफिस में जाते हो, तुम आईटी में हो, तुम्हारे को क्या जरूरत है मसल की? सुनो, तुमको हेल्दी रहना. Why people go to gym? हेल्दी रहना है. तुम कैसे हेल्दी रहोगे भाई? मसल इज द biggest and most important organ in the human body.
never ever any medical book says that you have to go to gym. अभी मेडिकल बुक क्या सब कुछ बोलेगा क्या? जिम जाना है, पानी पी, ये करना है, वो करना है. मेडिकल बुक बोलेगा कि तुम्हें कौन सी दवाई लेनी है. Never ever any medical book says that आप cycling करो. Because it is common sense. You don't have to say everything. मेडिकल बुक क्या बाइबल नहीं है भाई. Trekking करो, मत करो. मत Don't करो. do that. Don't do it. This is the reason. You raise a very good point. क्यों आते हैं बैक पेन? बैक पेन आता है because of unnecessary activities. Back pain आता है because of no activity, because you're not capable to do basic activity, which this particular doctor is calling unnecessary activity. Unnecessary activities क्या? आपके पास इतने लोग हैं, ऐसा नो कितने लोग काम कर रहे हैं यंगस्टर्स हैं, इनका एक ही रहता है कि मुझे जिम जाना है, भाई हाँ मतलब साइकिलिंग करना है. मैं भी पूछा क्यों जाना जिम तुमको, बोला नहीं बॉडी बनानी है. बॉडी क्यों बनाना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई. हाँ बॉडी क्यों बनाना? आपकी शादी हो गई. देख, बॉडी क्यों बनाना? शादी हो गई. मतलब शादी हो गई तो इंसान क्या अपने लाइफस्टाइल को सुधारे नहीं क्या? मतलब people have every right to live properly, to live long, and if you're not strong enough, you will be getting, dependent on your loved ones to do basic activities like sitting, standing, lifting anything from the floor. If you're not strengthening your muscles, if you're not taking care of the strengthening part, और ये जिम जाने का और बॉडी बनाने का एंगल जो है ना, ये बहुत ही गलत है. एंड लुकिंग एट हिम, लुकिंग एट हिज स्ट्रक्चर, आई कैन रिमूव 100 थिंग दैट इज रॉन्ग विद हिज पॉस्चर बिकॉज ऑफ वीक मसल्स. ओके, पॉस्चर गलत क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल एंड वीक मसल्स. इफ यू डोंट यूज इट, यू आर गोइंग टू लूज इट. फिर शादी नहीं हुआ तो आपको बॉडी से देख के तो कोई शादी नहीं करता. आपको बॉडी से शादी नहीं करता भाई. शादी करने के बाद बॉडी को जिंदा तो रखना है ना. जॉब से करता है, नहीं तो आपका सैलरी से करता है. हाँ तो क्यों करना? हाँ यू आर नॉट गोइंग इनटू मूवीज, यू आर नॉट ए जिम ट्रेनर, यू आर नॉट ए सेलिब्रिटी वैसा दिखने के लिए. यू आर ए सॉफ्टवेयर गाय, नहीं तो यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए लॉयर. तो क्यों करना है? देयर इज नो पॉइंट. बट वो करने से आपको नुकसान हो सकता है. जिम जाने से, वर्कआउट करने से नुकसान हो सकता है. आप देखो ना आजकल तो जो 40 साल के ऊपर हो गए वो जिम जाना चालू कर देते हैं. मैं हैदराबाद में बोलता हूँ, सैटरडे संडे क्या सीन है हमारे यहाँ. कार के ऊपर साइकिल उसको बांधते हैं और ORR को जाते हैं. ORR इज आउटर रिंग रोड. वहाँ पे कार पार्क करते हैं, वो साइकिल लेके 40 किलोमीटर. वो बंदा कभी भी साइकिल नहीं चलाया होगा 30 इयर्स तक. शादी होने के बाद बीवी बच्चे हैं, अभी वो अमेरिका में कोई साइकिल कर रहा है, अमेरिका में कोई साइकिल रेस हो रहा है, नहीं तो दिल्ली में हो रहा है, वो कॉपी करता है. बट दिस इज गुड फॉर आवर बिजनेस. एक और चीज, जिम जाने से खाली बॉडी नहीं बनती है, मतलब खाली मसल बिल्ड नहीं होते. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट हैपेंस व्हेन यू गो टू द जिम. ओके, you start improving your cardiovascular health, you start improving your immune system response, your immune system works more efficiently, your metabolism works more efficiently, your joint health improves, your posture improves, lot of other things that happens. और इनका पर्सपेक्टिव क्या है? जिम जाना और बॉडी बनाना. ओके, अच्छा, एवरी वीक 2-3 लोग आ जाते, सर मैं साइकिलिंग को गया, मेरे को पीछे पेन आ गया. दिस इज गुड फॉर बिज. बट हैविंग सेड दैट, नो, अवेयरनेस की चीज भी होती है. आई टेल देम डोंट गो टू जिम्स. क्यों जाना यार जिम? ये क्या अवेयरनेस है भाई? डोंट गो टू जिम. बोलना ये तो ऐसे बोलो कि ग्रेजुअली एक्टिविटी स्टार्ट करो. ओके, पहले जिम जाओ, अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करो. लोग लॉन्ग डिस्टेंस वॉक पे चले जाते हैं आउट ऑफ नो वेयर. ओके, डिसाइड करते अभी फैट लॉस करना है तो इतना 5-10 किलोमीटर्स वॉक पे चले जाएंगे, रनिंग पे चले जाएंगे पहले ही दिन. दूसरे दिन आएगा शिन स्प्लिंट, नी पेन आएगा, क्योंकि उनके मसल्स और टेंडन बोन स्ट्रांग है ही नहीं ना. तुम डायरेक्ट जा रहे हो. तुम पहले जिम जाओ, बेसिक लेवल पे स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करो. जिम में 2.5 kg वेट से लेकर 60-70 kg वेट तक रहता है, और तुम बेसिक से स्टार्ट करो ना. तुम डायरेक्ट जंप करोगे रनिंग पे, तुम डायरेक्ट जंप करोगे इम्पैक्ट बेस्ड एक्टिविटी पे, तो तुम्हारे को पेन आएगा ही.
तो तुम ऐसा मैसेज दो कि डोंट गो टू जिम, डोंट वर्क आउट, डोंट लिफ्ट वेट. दिस इज वेरी रॉन्ग. ऋतिक रोशन जाना है बिकॉज उसका नहीं है तो उसका खाना नहीं मिलता उनको. ऑल दिस हीरोज अजय देवगन दे हैव टू गो बिकॉज उसका ऐसा ही है. पर वो डेली जा रहे हैं ना, बहुत टाइम से जा रहे हैं, कंटिन्यू बहुत जा रहे टाइम हैं. से कभी तो जा- start नहीं, किया नहीं, रहेगा, एक बहुत एक time मेरा से. एक तेलुगु में एक हीरो था, आई डोंट वांट टू नेम हिम. वो ही इज अ वेरी वेरी फेमस हीरो. अभी वो फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ 35 इयर्स में. तब तक वो आवारगिरी करता था, जस्ट लाइक अ नॉर्मल किड यू नो. बाद में उसको सडनली स्पॉट हो गया, एक अच्छा हिट हो गया, एंड ही वाज लाइक नो ही हैज टू शूट अ मूवी वेयर ही हैज टू बिल्ड अप द मसल्स. उसको स्प्रेन आ गया बैक में, तो सिवियर पेन, ही इज अनेबल टू डू द नेक्स्ट मूवी. मैंने बोला वो आया तो मैं आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, ऐसा पर्सनली नहीं. मैंने बोला द रीजन फॉर योर बैक पेन इज नो यू स्टार्टेड योर जिम लाइफ फॉर मूवी. It is not when you start, it is how you start. Here's when we trainers come into picture. Okay, there are people who are qualified to guide you, to take you from where you are currently to the next level, to transform you, to strengthen you. And this is very subjective, and it is not at all, particular age that you don't need to work out at this age and all. You can always start at any age. You just need a proper qualified trainer to guide you. हाँ. तो आएगा. तो वो बोल रहा है 80 केजीज 90 केजीज डेड वेट में लिफ्ट कर रहा हूँ, तो वो आएगा. द रीसेंट एग्जाम्पल इज रकुलप्रीत सिंह. रकुलप्रीत सिंह को क्या हुआ पता है ना, शी वॉज लिफ्टिंग 80 केजीज, उसका बॉडी वेट ही 55-60 रहता है. तो 80 केजीज कौन है वो जिम ट्रेनर? 80 kgs लड़की के उठाने से उसका बैक टूटेगा नहीं. बहुत सारे लड़की लोग 140-130 kgs भी उठाते हैं और उनका बैक पेन नहीं होता है, क्योंकि देयर इज अ थिंग कॉल्ड फॉर्म एंड टेक्निक एंड बायोमैकेनिक्स which your trainers needs to know how to teach you. First of all, your trainer needs to know what is biomechanics and how to lift weight in the most efficient way. So it is not that 80 kgs उसको उठाने की जरूरत है कि नहीं, वो कैसे उठा रही है उसके ऊपर डिपेंड है. And sadly in India there are very less trainers who actually know about the biomechanics. And what is saying about women with lifting weights? जो बताया कि वो फीमेल है ना, वो सॉफ्ट रहते हैं, टेंडर रहते हैं, उसको 80 केजीज वेट उठा के क्या करेगी वो? सही बात है. नॉनसेंस है. ऑलमोस्ट फीमेल को 80 kg उठाने की क्या जरूरत है? सॉफ्ट है, टेंडर है, वो क्या करेगी? नॉनसेंस. This is what he's saying. This is coming from a doctor, guys. And after looking at this podcast, like, I was completely surprised. And yeah, that's it. मेरा हो गया भाई. I'm done with this podcast. And I hope you like the video, and I hope you get my message. And please let me know in the comment section what you feel about all of this, and what are your perspective about all this. Okay, so see you guys in the next one.